So very good morning to my dear students. As we have started with the another chapter of civics, role of the government in health. Government provides us many services, maybe in the field of education, in the field of health, employment and housing, ठीक है, development of road, electricity. But this chapter is all about that what role government play in the field of health. That day we learn the meaning of health. ठीक है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इट्स when we talk simple meaning of health, जब हम बात कर रहे हैं, it means that ability to remain healthy. ठीक है, there should not be any illness, there should not be any injury. But जो health का topic है, that is not confined to this. We should also want physically good as well as mentally healthy. हमें physically भी healthy रहना है और mentally भी healthy रहना है. We should also talk about that कि जो हमारी surroundings हैं, that should also be clean, proper sanitation facility, and everyone should have food to eat. ठीक है, proper वहाँ पे pollution free environment होना चाहिए. So all these things we cover under the concept of health. Then we studied uh, we studied that paragraph in which we study about the present day कि जो हमारे जो इंडिया में जो मेडिकल सिस्टम है that is becoming so much advanced, but there is also a one negative side. Positive aspect is also there, negative aspect is also there. Positive aspect में क्या था कि इंडिया में so many medical colleges are set up and there are number of जो doctors हैं they are every year near about 15,000 जो doctors हैं they qualify every year. So many government hospitals are there and there are many people those who come from foreign countries for their treatment. Foreign tourists भी यहाँ पे आते हैं treatment के लिए. And we also studied that India is the third largest producer of the medicines. ठीक है, पर हमने एक नेगेटिव साइड भी देखी कि दो अब हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, वी आर हैविंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऑल्सो, नंबर ऑफ डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट हैं इन प्रोड्यूसिंग द मेडिसिन, पर इसके भी अलावा वी फेस सम प्रॉब्लम्स इन दिस फील्ड. ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो ये डॉक्टर्स हैं दे मोस्टली सेटल डाउन इन द अर्बन एरियाज, not in the rural area. They prefer to settle down in the urban areas, and despite of so many government hospitals are there, but still many people, lakhs of people affected from tuberculosis died because of the tuberculosis. They also affected by malaria. मतलब इतने सारे government hospitals हैं, private hospitals हैं, still we are not providing them the proper healthcare facilities to them. Then so many people are not getting clean drinking water, communicable diseases spread हो जाती हैं. ठीक है, even there are many children those who are not getting enough food to eat, malnourished हैं, undernourished हैं, they face lot of problem related to that. Main thing when we talk about the healthcare in India, we need two things. First is health facilities, second is manpower. हेल्थ फैसिलिटीज में क्या क्या आ सकता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, ये सब चीजें एम्बुलेंसेज होनी चाहिए, ब्लड बैंक्स होने चाहिए, पर इन सभी को रन करने के लिए वी ऑल्सो नीड मैन पावर. हमें लोग भी चाहिए जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, वर्कर्स, फिजिशियंस, वी नीड ऑल दीज पीपल ऑल्सो. ठीक है, तो अगर हम हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी गुड हेल्थ फैसिलिटीज एज वेल एज मैन पावर ऑल्सो. So far we have done this. So today I am going to continue the topic. So today we are going to continue from page number 21. So अभी तक हमने पढ़ा कि जो इंडिया है, इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और यहाँ पे जो मोस्टली जो है हमारी जो कंट्री है दैट हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस. अब यहाँ पे जो वर्ड आया है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है कि दिस सिस्टम इज रन बाय द गवर्नमेंट. जो पब्लिक सर्विसेज हैं, these services are provided by the government.
ठीक है। तो गवर्नमेंट हमें कई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अगर हम सिंपल वर्ड पब्लिक का मतलब जानना चाहें, व्हाट डू वी मीन बाय पब्लिक, सो इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक? पब्लिक मीन्स इट इज एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज मेंट फॉर ऑल पीपल, जो सभी लोगों के लिए है, एंड इट इज मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इन सर्विसेज को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। तो जब हम पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, सो दिस हेल्थ केयर सिस्टम इज आल्सो रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक दैट इज मेंट फॉर ऑल द पीपल एंड रन बाय द गवर्नमेंट। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं। वी आर यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, एवरीथिंग वी आर हैविंग, बट स्टिल देयर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो ट्रीटमेंट में एडवांस, मतलब हमारे यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, मशीन्स भी हैं, काफी एडवांस में यूज हो रही हैं, बट स्टिल हम अगर उसका दूसरा साइड देखें, देयर इज अ वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में ये सिस्टम, जो ये हेल्थ सर्विसेज है, स्टिल इट इज वेरी मच पुअर। कितने सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इवन हम ट्राई करते हैं कि जो इतने सारे लोग, जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, 100,000 पीपल, दोज हु आर लिविंग इन द विलेज एरिया, दे शुड आल्सो अवेल दीज सर्विसेज। उनके लिए हमने विलेजेस में भी हेल्थ सेंटर्स ओपन किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ डिस्पेंसरीज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, सब कुछ है। बट जब हमने वो कॉलम्स को पढ़ा, जो सेकंड जो हमने कॉलम देखा, तो इसमें पता लगता है कि जो हमारे यहाँ पे एक्चुअल जो कंडीशन है, दैट इज फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। जहां हम इतने सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन रही हैं, जहां पे इतना ज्यादा मेडिसिन भी प्रोड्यूस हो रही हैं, बट स्टिल पीपल आर नॉट गेटिंग any benefits related to the healthcare services. So when we talk about this, so though there are positive developments in the field of medicine, यहाँ पे positive development है in the healthcare services, but still it is far away from the reality. If you just get it, that there is a word paradox. Paradox means something that is opposite to what we would expect. हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी हेल्थ सर्विसेज हो, डॉक्टर्स क्वालिफाइड हो, दो वी आर हैविंग, बट इन रियलिटी दैट इज टोटली ऑपोजिट। द पीपल आर नॉट गेटिंग देम। सो जो एक्चुअल सिचुएशन है, दैट इज टोटली ऑपोजिट व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। तो हमारी कंट्री में मनी है, नॉलेज है, पीपल हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, बट वी आर अनएबल टू मीट ऑल दीज थिंग्स। क्या रीजन हो सकता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं सबके पास नहीं पहुंच रही? I think lack of responsibility. No one is taking the responsibility कि हम इंश्योर नहीं करते कि सभी के पास ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज पहुंचे, है ना। सो इट्स एवरीवन्स ड्यूटी कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट के साथ साथ कि हम भी गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करें या इस चीज को लेके चलें कि एवरीवन शुड गेट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो दैट लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर। सेकेंड थिंग, करप्शन। मे बी जो गवर्नमेंट है, बहुत ज्यादा पैसे, मतलब जो मनी है वो अलॉट की जाती है टू स्पेंड ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, पर हो सकता है जब तक वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है, उसमें से जो मैक्सिमम जो मनी है वो कई बार जो लीडर्स हो गए या बीच में कुछ भी जो ऑफिसर्स हो गए वो ही खा जाते हैं। तो करप्शन इज देयर, तो प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती। एंड थर्ड, जो सबसे बड़ा रीजन है, लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कि जो हम बात करते हैं, वर्ल्ड की जो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, दैट इज इंडिया। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन में भी हो सकता है हमारे कंट्री में प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल रही है, ठीक है। वन कैन बी द लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड दैट इज करप्शन, थर्ड इज द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन। So these are the reasons. अब हम इस चीज को और अच्छे से समझेंगे with the help of a story of हाकिम शेख। अब हम इस पर्सन की स्टोरी के बारे में हम इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। नाउ यू आर एबल टू गेट कि क्या है द ट्रू रियलिटी ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। सो जो हाकिम शेख है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति। वो इस मजदूर समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर, वहां का वो मेंबर है। वन डे व्हाइल ट्रेवलिंग बाय ट्रेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही सफर्ड विद हेड इंजरीज। उसको बहुत ज्यादा चोट लगती है, हेड इंजरीज हो जाती हैं, एंड ही वाज इन वेरी सीरियस कंडीशन।
अब हेड इंजरी हुई है, इट मींस जो उसकी सिचुएशन रही होगी वो नॉर्मल तो नहीं होगी, दैट सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल एंड ही नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। जब भी कोई एक्सीडेंट केस होता है तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं और सबसे पहला होता है कि हम इनको हॉस्पिटल ले जाएं। सो ही आल्सो मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही सफर्ड विद हेड इंजरीज, और उस टाइम पे ही नीडेड अ इमीडिएट, मतलब उसी टाइम पे उसको एक ट्रीटमेंट की जरूरत थी। सो ही वॉज टेकन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सबसे पहले उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कोलकाता के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया गया एंड दे रिफ्यूज। हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट करने से रिफ्यूज कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट हैव स्पेयर बेड। उनके पास एक्स्ट्रा बेड ही नहीं था, मतलब जो भी वहां पे बेड थे वो सारे भरे हुए थे, कोई भी वेकेंट बेड नहीं था। सो दैट्स व्हाई दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम। देन दे मूव टू अनदर हॉस्पिटल। अब उस हॉस्पिटल में क्या था, उस हॉस्पिटल में दे डिडंट हैव एनी फैसिलिटी, प्रॉपर वहां पे फैसिलिटीज नहीं थी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं थे। अब हेड इंजरी है, कोई नॉर्मल डॉक्टर तो उसको ट्रीट नहीं कर सकता था। सो फॉर दैट दे नीड स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स, ठीक है, तो वो नहीं थे वहां पे, दैट्स व्हाई उसको वहां उस हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट नहीं मिला। एंड विद दिस फॉर 14 आवर्स इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन दे मूव फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर। वो 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गए बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम, पर किसी ने भी उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया वेयर ही रिसीव्ड द ट्रीटमेंट। अब आपको पता है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें कॉस्ट ऑफ जो उसका एक्सपेंडिचर कॉस्ट है दैट इज मच मोर। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे बहुत पैसा लगता है, सो ही हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट। कहाँ पे उसका इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता था, बट lack of facilities, lack of specialized doctor, not having spare bed, so he didn't get the treatment in the government hospital. Then he moved, shifted to the private hospital where he had to spend a lot of money for his on his treatment. And he was very angry, he was very upset. Even the organization and he himself filed the case in the court. उन्होंने कोर्ट में ये केस फाइल किया कि अगर मुझे टाइम रहते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर ये फैसिलिटीज होती तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता और मुझे इतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। सो दे फाइल द केस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द स्टोरी। देयर इज वन मोर स्टोरी इन योर बुक, यू कैन मूव टू दैट। अगर आप देखोगे कि जो आपकी इस बार जो सिविक्स है ना, इसमें मोस्टली जो चैप्टर्स हैं दैट आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, डे टू डे लाइफ के साथ, जैसे आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन करते हो, सो उस फॉर्म में है एंड इट इज फॉर द बेटर अंडरस्टैंड। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, देन आई कैन कंटिन्यू। So now the second story, first जो इंसिडेंट था that was of a laborer, हाकिम शेख का जो था इंसिडेंट। now this is the another story, the cost of a cure। अब ये दो फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन है, एक का नाम है अमन, दूसरे का नाम है रंजन। अब जो रंजन है वो बहुत अच्छी फैमिली से आता है और जो अमन है उसके मतलब हार्डली, मतलब पुअर तो नहीं कह सकते, मतलब इतना भी पुअर नहीं है, बट दे आर, it is very difficult for their family to meet their ends. They are studying in the same school। अब ये कन्वर्सेशन चल रही है कि वो काफी दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हैं एंड दे जस्ट टॉक अबाउट कि क्या क्या हुआ उनको। So when they talk with each other, they found that both of them suffered with the viral fever। दोनों ही फ्रेंड्स को वायरल फीवर हुआ था एंड दे टॉक्ड अबाउट कि जब वायरल फीवर हुआ तो दोनों ही दे वेंट टू द हॉस्पिटल। एंड जो रंजन है, जो उसके फादर है, he took him to the hospital that was very big and it was just like a 5-star hotel। 5-स्टार होटल की तरह था और मतलब पूरी बेस्ट फैसिलिटीज थी। और जब वहां पे रिसेप्शन पे, जब हम वहां पे जैसे कि जब हम जाते हैं हॉस्पिटल्स में, हमें रिसेप्शन पे जाके पर्ची वगैरह कटवानी पड़ती है, वी हैव टू टेक द नंबर। सो फॉर दैट हिज फादर हैड पेड 500 रुपीज, 500 रुपीज दिए। और जो वहां का एटमॉस्फेयर था बहुत ही काम, म्यूजिक प्ले हो रहा था, सब कुछ बहुत ही शाइनी था, प्रॉपर क्लीनिनेस थी, एवरीथिंग वाज फाइन। उसके बाद when they met the doctor suggested them to have some टेस्ट के लिए कहा गया उनको कि आप टेस्ट करवा लीजिए। एंड जो वहां पे जो लेडी थी, the one who has taken the blood from the रंजन, तो उसने क्या किया, उसको कोई जोक सुनाए, उसके साथ बातें की, टेलीविजन से रिलेटेड बातें की, तो उसे पता ही नहीं लगा, उसको पेन ही नहीं हुई इंजेक्शन की।
he didn't feel anything about that. टेस्ट का रिजल्ट आया, then the doctor diagnosed that he is suffering from viral fever. तो उसको वायरल फीवर हुआ, सो द डॉक्टर गेव हिम द मेडिसिन, उसको मेडिसिन दी, कुछ टैबलेट्स दिए, कुछ सिरप दिए, और लास्ट में उसने कहा कि जो सिरप है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा, मतलब ये नहीं कि उसका टेस्ट खराब होगा, कड़वा होगा. देन दे केम बैक टू द होम. अब जो अमन है, देन ही स्टार्टेड नरेटिंग हिज इंसिडेंट. तब वो पूछ, अब क्योंकि रंजन था तो उसको था कि अब मेरा भी ऐसा ही रहा होगा, जो भी तुमने जो वहां पे हॉस्पिटल में गया होगा, सो यू फेस द सेम थिंग. पर उसने जो बताया दैट वाज टोटली ऑपोजिट व्हाट द रंजन फेस्ड. टोटली ऑपोजिट था उसमें. अब जहां पे अमन के फादर लेके गए, दैट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, ठीक है. वहां पे बहुत ज्यादा रश था, लाइन लगी हुई थी, क्यू लगा हुआ था, एंड दे हैड टू वेट इन अ क्यू एट द ओपीडी काउंटर. अब ओपीडी का मतलब क्या होता है? ओपीडी मींस आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. कई बार जब आप क्लिनिक्स में जाते हो, हॉस्पिटल्स जाते हो, वहां पे ओपीडी लिखा होता है, तो उस टाइम हमें उसका मतलब नहीं पता होता ये क्या है. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब जो ये पेशेंट है ये यहाँ पे आएंगे, चेकअप करवाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे और चले जाएंगे, इनको एडमिट नहीं किया जाएगा, ठीक है. सो उसके फादर उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए, बट फर्स्ट दे हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू. बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी ओपीडी में जाने के लिए. जब उनकी टर्न आई तो डॉक्टर ने उनको भी सजेस्ट किया कि ब्लड टेस्ट होना चाहिए. अगेन दे हैड टू स्टैंड इन द क्यू. पहले वो डॉक्टर को ओपीडी में चेक करवाने के लिए क्यू में खड़े हुए. नेक्स्ट जब उनको ब्लड टेस्ट के लिए कहा गया, देन दे हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर क्यू. वहां पे भी एक लाइन में लगना पड़ा, वहां पे भी बहुत ज्यादा रश था टेस्टिंग रूम में. देन दे गॉट दैट रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट. तो उसको भी यही कहा गया, डायग्नोज किया गया कि दैट रमन वाज सफरिंग फ्रॉम वायरल. तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर सजेस्टेड कि आप ये एक मेडिसिन लो, मतलब ही गेव मी, मतलब थोड़ी सी एक आधी मेडिसिन दी और उसे कहा ये खाओ, देयर इज नो नीड टू वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस टैबलेट खाने से इसका जो फीवर है ये कम होना शुरू हो जाएगा. अब वो जो दोनों दोस्त थे, ठीक है, रंजन और अमन, दोनों ने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है. अब क्या उन्होंने ये चीज को नोटिस किया कि जो रंजन था उसने कहा कि माय हॉस्पिटल वाज नाइस, सब कुछ अच्छा था, पर क्या था, दे गेव मी मैनी मेडिसिन, वायरल फीवर था. अब आप देखो अमन को दे जस्ट गिव, मतलब थोड़ी सी मेडिसिन, वन मेडिसिन देके उसको कह दिया कि ठीक है आप ये मेडिसिन खाओ, आपका बुखार कम होना शुरू हो जाएगा. पर रंजन को उसने सिरप भी दिया, मेडिसिन भी दी. सो दे गेव हिम मैनी मेडिसिन. और कॉस्ट जो वहां पे उनको चार्जेस लगे, दैट वर वेरी मच देन द पब्लिक हॉस्पिटल और द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. so they compare in these ways. You can also compare the public and private hospitals. हम भी जब बीमार होते हैं, we prefer to go to the private hospitals. हमें लगता है जल्दी टर्न आ जाएगी, जल्दी क्योर हो जाएगा, ठीक है, we prefer to go there. So with these two incidents, one is of Hakim Sheikh and the incidents in which we studied about कि जो friends थे, they also shared the incident. One of them went to the private hospital, other went to the government hospital. So with this we can come to know that कि जो हमारे government hospital है, sometimes there is a lack of infrastructure, maybe of facilities, but it doesn't mean कि वहाँ पे उनके पास qualified doctors नहीं होते. But due to lack of manpower, lack of facilities, so we prefer to go to the private hospital. And in the case of both of the boys, they also made the comparison कि जो cost है, जहाँ पे हम cost की बात करते हैं, private hospital है, that are very much costlier than the public hospitals, government hospitals. तो जब लोग हैं, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. वहां पे उनको लाइन में लगना पड़ता है, दे हैव टू वेट फॉर देयर टर्न, बट वहां पे भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं एज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट. बट क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता, तो वी प्रेफर टू गो टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. एंड इन दिस चैप्टर जो हम मेन जो चीज है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इंसिडेंट्स पढ़े हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल कि जो ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इसकी सिचुएशन इंडिया में क्या है. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट पब्लिक, तो हम जो गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, क्या वो सफिशिएंट है? बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन विलेज एरियाज.
तो वहां पे पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटीज कैसी हैं, हमारे जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसी हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो मैक्सिमम जो डॉक्टर्स हैं दे प्रेफर टू सेटल इन द अर्बन एरियाज, उनके अपने क्लिनिक्स हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज दे वांट मनी माइंडेड, द वन थिंग इज मनी माइंडेड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वहां पे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा इट्स ओनली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दोज हु जस्ट मेक यू अवेयर अबाउट द डिजीजेस, जैसे मलेरिया के बारे में, डेंगू के बारे में, चिकनगुनिया के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको अवेयर करते हैं टाइम टू टाइम। वो हमारे स्ट्रीट्स में, हमारे नेबरहुड में भी आते हैं फॉर द चेकिंग वर्क, है ना। तो कई बार कैंप्स वगैरह भी लगते हैं फॉर द फ्री मेडिकल चेकअप, दैट इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सो इन दिस नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द स्टडी ऑफ कि जो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज एंड द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। देन वी आर गोइंग टू कंपेयर बोथ ऑफ द सर्विसेज। पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे बिकॉज अभी तक हमने केस स्टडीज पढ़ ली हैं, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी आर गोइंग टू कंपेयर, और विद दीज टू इंसिडेंट यू कैन ऑल्सो कंपेयर ईच अदर, ओके। As I already told you कि जो public services हैं these are mostly run by the government and these are meant for the all people। पर जब हम private की बात करते हैं, what is the meaning of private? Private means these services are organized either by an individual, या तो वो individual उसको organize कर रहा है, और a company, मतलब a group of individuals they are organizing these services। हमारे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं, तो कोई वो इंडिविजुअली रन कर रहा है या वहाँ पे ग्रुप ऑफ और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट हॉस्पिटल। तो इन दोनों के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस। Public health services, so when we are talking about public health services, so this is a chain of health centers and hospitals। health centers कहाँ पे हैं? when we talk about the village level, rural level पे जब हम बात कर रहे हैं we are having the health centers। in cities we are having hospitals। health centers में इनके doctors भी होते हैं, workers भी होते हैं, so they are also trained। ये भी trained persons हैं, इनको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई पर्सन आता है, इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी इलनेस, तो उसको कैसे क्योर करना। So if we talk about the public health services, so public health services it is a chain of health centers and hospitals, health centers and hospitals which are run by the government, जिनको कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, and they are linked with each other। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं and they covered both the areas, urban areas as well as the rural areas, दोनों areas में combinedly work कर। In the next lecture we are going to study this in detail, okay। Till here I think everything is clear to you। if you have any doubt you can ask।